ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸਿੱਧ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। Right. So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS mains। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, and I hope you are prepared very well for that particular exam and you are still preparing on the same track, right? So we have started this lecture series on ethics. As I told you, a lot of lectures have already been dealt on, a few lectures are remaining and today lecture is one of them, right? Very important topic, बहुत अच्छा ROI है इसका, right? स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द डे। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ ਇਸ यूनिट 2 विच इज सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अपना टॉपिक रहने वाला लग गया है लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अ सोर्स ऑफ एथिक्स गाइडेंस। एथिकल गाइडेंस ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस ਐਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने तो पहला, ठीक है, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, राइट, विच इज मेंस ब्रेन बॉक्स, राइट। मेंस ब्रेन बॉक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਵਿਦ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਮੇंस ब्रेन बॉक्स, राइट। एंड इफ यू वांट द मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, राइट। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? 8000 रुपीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ 5000 ਰੁਪਏ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਰਾਈਟ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਿਸ ਹੋਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਬੁਕਲੇਟਸ ਆਰ, right? Still, if you want any further query, you can definitely call on to our number, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। So now let's start the topic of the day. Okay, so we are dealing with administrative ethics, right? We are dealing with as administrative ethics, yes। ਤੇ अपने टॉपिक, ठीक है, ਕਿਹੜੇ टॉपिक हो चुके हैं? स्टेटस एंड प्रॉब्लम we have dealt with। आज ਦਾ अपना टॉपिक है लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड कॉन्शियस सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2 लेक्चर के अंदर अंदर ये वाले टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी यूनिट भी कवर कर देंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी बीच में कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यस। बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ठीक है, आंसरिंग प्रैक्टिस ਲਈ। The strength of the society is not in its laws but in the morality of its people, by स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी कोट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी ਦਾ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं का, इनफैक्ट लास्ट ईयर ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, where I will review this question for you ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ठीक है, no money is being charged for you from you, ठीक है, for this particular activity, don't worry about it, I am here just to help you out, right? All right, so now let's start our okay, so अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपा। yes, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, right? Okay, so first of all, the keyword here is, the first word that you will see here is ethical guidance, ethical guidance। तो एथिकल गाइडेंस, एथिकल क्या टीच करता है हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं, राइट। तो एथिकल गाइडेंस बेसिकली इट विल टेल यू व्हाट, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यही बताएगा ये कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, की सही है तो की गलत है। ठीक है, बेसिकली एथिकल गाइडेंस विल लीड यू टू दिस पार्ट, नॉट रादर दिस, इट विल टेल यू टू डू गुड। ठीक है, व्हाट इज गुड व्हाट इज राइट वही बताएगा ना ये बैड वाली चीज पे तो जाने के लिए मना करेगा। ठीक है, हमने देख चुके हैं इस पे। सो एथिकल गाइडेंस इज दिस, राइट, दिस इज द पाथ दैट यू नीड टू फॉलो। ये इट विल गाइड यू टू लीड अ एथिकल पाथ, दैट इज एथिकल
guidance, as simple as that. ठीक है. So now the next question that you should be asking is, ठीक है, can law be a source of ethical guidance? This is the question. ठीक है, can law be a source of ethical guidance? Now let's see, इन्हें आंसर करने ट्राई करते हैं. ठीक है, कि क्या लॉ भी एक एथिकल गाइडेंस का सोर्स हो सकता है, बिकॉज यही हमारा टॉपिक है, हम उसी को समझने की ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो हमने देखा है कि लॉ की बात करें जब हम, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, देयर आर टू पार्ट्स इन इट. ठीक है, देयर आर टू डायमेंशन ऑफ लॉ. फर्स्ट, कहते हैं ना, लेटर, लॉ शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, राइट? द लेटर ऑफ द लॉ, the letter of the law, right? Second part is spirit of the law. ठीक है, so let's see one by one what does this mean. ठीक है, what does we mean by letter of the law and what does mean spirit of law? तो जब letter of law की बात करते हैं तो it simply means the verbal interpretation, the verbal interpretation, कि जो प्राइमा फेसी आपको, ठीक है, जो प्राइमा फेसी आपको पढ़ने से समझ आए. ठीक है, लिटरल मीनिंग, it simply means the literal meaning, it simply means the literal meaning. ठीक है, वो होता है क्या? लेटर ऑफ द लॉ. यस और नो? दैट मींस लेटर ऑफ द लॉ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ लॉ, व्हिच इज रादर मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लॉ, लॉ को जब इंप्लीमेंट करना हो, लॉ को फॉलो करना हो, तो स्पिरिट ऑफ लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन द लेटर ऑफ द लॉ. तो व्हाट इज मीन? इट इज द इंटेंट ऑफ द लॉ. यस, इट मींस द इंटेंट ऑफ द लॉ. स्पिरिट ऑफ लॉ को रादर इंटेंट ऑफ लॉ भी कहते हैं, कि इंटेंट मतलब इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, what are the intentions behind the law. Basically the objective behind the law, what is your objective behind the law, that what do you want to achieve through this particular law. आप ये लॉ लेके आ रहे हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, आपका इंटेंट क्या है, वो होता है क्या? आपका स्पिरिट ऑफ द लॉ. Yes or no? And these two things completely make the law. Yes, okay. अब यहाँ पर अगर हम लेटर ऑफ द लॉ की बात करें तो क्या इसकी कोई एथिकल गाइडेंस से कोई लिंक मिलेगा आपको? सो आंसर है नो. एथिकल गाइडेंस से कोई मीनिंग, लिटरल मीनिंग है भैया, ये तो आपने लॉ लिखा, उसका लिटरल मीनिंग है, वो आपने पढ़ना और उसको फॉलो करना है, दैट्स इट. बट व्हेन वी कम टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जब हम बात करते हैं किसकी? इंटेंट ऑफ द लॉ की, तो ये जो है बेसिकली अगेन ये भी आपको क्या बताएगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए. यस और नो? So intent of the law will also tell you the same thing, rather to do something, it will tell you, and not to do something. ये दोनों चीजें बता रहा होगा. Yes or no? To do something and not to do something. ये do something वाला अगेन गुड की तरफ है और ये क्या है आपका? बैड की तरफ है. Yes, फॉर एग्जाम्पल हमने टैक्स के लॉज बनाए. ठीक है, टैक्स के लॉज बनाए, लेट्स से टैक्स इरोजन के लॉज बनाए थे जब हमने. ठीक है, वी मेड अ लॉ ऑन टैक्स इरोजन, जिसका इंटेंट क्या था, जिसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने क्यों बनाया था? ये टैक्स इरोजन का लॉ हमने बनाया था सो दैट लोग टैक्स को भरें, टैक्स फिल करें, टैक्स को अवॉइड ना करें एज सच. यस और नो? ठीक है, वो इसका क्या था, इसका लेटर ऑफ द स्पिरिट में भी आप, सॉरी, लेटर ऑफ द लॉ के अंदर भी आपको दिखेगा कि टैक्स इरोजन से सेव करने के लिए था ये, राइट? बट हुआ क्या, लोगों ने इस टैक्स का क्या करा, टैक्स इरोजन का क्या करा, लूप होल ढूंढा एंड पीपल स्टार्टेड टू डू टैक्स अवॉइडेंस. तो क्या ये लॉ सही में फॉलो हुआ? नहीं, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ लॉ, इंटेंट ऑफ लॉ तो थी ना कि लोग टैक्स को भरें, रादर टैक्स अवॉइडेंस की तरफ ना जाएं. यहाँ पर तो इंटेंट ये थी ना कि लोग टैक्स इरोजन ना करें, टैक्स को फिल करें. बट हुआ क्या रियलिटी में? लोग टैक्स अवॉइडेंस की तरफ चलने लगे, शिफ्ट हो गए टैक्स अवॉइडेंस की तरफ. तो लॉ तो फॉलो नहीं हुआ. यस, तो इंटेंट ऑफ लॉ बेसिकली यहाँ पर लोगों को करना क्या चाहिए था, व्हाट डज इट हैज टू बी डन विद, कि टैक्स के जब ये लॉ जब बना, इस लॉ का जो इंटेंट बेसिकली क्या था वो आपको बता रहा था
आपको सिर्फ लेटर ऑफ द लॉ को फॉलो नहीं करना, आपको इंटेंट ऑफ लॉ को भी फॉलो करना था। इंटेंट ऑफ लॉ कह रहा था कि भैया टैक्स को भरो, टैक्स फिल करना इंटेंट है आपका, ये सही चीजें करनी है, आपको कुछ और नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम करना है। वो इंटेंट ऑफ लॉ बता रहा था, लेटर ऑफ द लॉ नहीं बता रहा था। लेटर ऑफ लॉ सिर्फ यही बता रहा था कि लॉ क्या डिस्क्राइब कर रहा है। आई बात समझ में? यस और नो? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ओवर देयर, right? So this is what intent of the law is. So what I'm trying to tell, that intent of the law which will tell you to do something or not to do something, like इस एग्जांपल के अंदर भी it is telling you to do something, मतलब it is telling you to file the tax, टैक्स फाइलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर not to do something is कि टैक्स अवॉइडेंस नहीं करनी है आपको, राइट? बिकॉज दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली इंटेंट ऑफ लॉ इज लीडिंग टुवर्ड्स एथिकल गाइडेंस। यस, तो कैन लॉ बी अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस? यस। हाउ? बिकॉज ऑफ द इंटेंट ऑफ द लॉ, intent of the law, the spirit of the law will lead you to ethical, the path will lead you to the ethical path. Yes, will lead you to ethical path, ethical guidance का काम करेगा ये। क्लियर हुई बात? यस और नो? राइट, ओके। देन सो अगर हम बात करें एथिकल गाइडेंस की, एथिकल गाइडेंस आपकी दो वे में होगी। एक एक्सटर्नल, राइट, जहां पर क्लियरली डिस्क्राइब्ड होगी चीजें, ठीक है, आपको साफ साफ लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी या फिर वर्बल फॉर्म में भी मिल सकती हैं, विच इंक्लूड्स व्हाट? लॉज। यस, अभी देखा हमने लॉ इज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सी एज सच लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप एक काइंड ऑफ वन एंड द सेम थिंग समझ सकते हो, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस। बट अगर हम सिलेबस को समझे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस का इंटेंट है, वो इन तीनों के डिफरेंसेस को नहीं समझने चाह रहे। दे आर नॉट आस्किंग फ्रॉम यू कि आप इन तीनों का डिफरेंस समझाओ। दे आर आस्किंग कि ये तीनों के तीनों को आप एक ही मान के चलो, कैन हाउ कैन दीज थ्री थिंग्स बी अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। सिलेबस आपको ये पूछ रहा है आपसे कि हाउ कैन दीज थिंग्स बी अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, आपको ये वाली डायमेंशन कवर करनी है, बट डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री एज वेल, राइट? जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, उनके भी स्लाइड डिफरेंसेस आपको बता देंगे कि क्या डिफरेंसेस है इनमें। ठीक है, ऑल राइट। सो एथिकल गाइडेंस एक्सटर्नल की बात करें तो ये सब आ जाता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, इंटरनल बोले तो आपके अंदर ही है जो, ठीक है, इंटरनल मतलब आपके अंदर से ही, इनर वॉइस। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस, which is in fact, if you ask me, is the biggest source of ethical guidance। ठीक है, अभी आएंगे इसके ऊपर कि कैसे ये सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस है, क्या क्या इसकी एस्पेक्ट्स है। ठीक है, बट जस्ट फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस वन, राइट? ऑल राइट, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक छोटा छोटा देख ही लेते हैं। सॉरी, यस, तो जब हम लॉ की बात करते हैं, सो हम बोलते हैं ना, लॉ इज द लॉ ऑफ द लैंड। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो लॉ होता है, वो जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री आपने डिफाइन कर दी है, आपके नेशन की जो बाउंड्री होती है, वो उनके लिए सेट होता है, उसी दायरे में रहेगा वो। कोई भी लॉ, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ बनाया, तो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही सीमित रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, यूएस सिटीजन के ऊपर वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक हमारे यहाँ पे गन्स कैरी करना क्या है? इलीगल है, यस, बट यूएस के अंदर गन्स कैरी करना क्या है? लीगल है। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ द लैंड है हमारा, इंडिया का जो लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि भैया गन्स कैरी करना इलीगल है, तो वो हमारी सिर्फ बाउंड्री के अंदर है, इंडियन बाउंड्री के अंदर रहेगा, उसके बाहर वो वैलिड नहीं है। यस, तो लॉ की बाउंड्री डिफाइंड होती है। देन कम्स रूल्स। रूल्स बेसिकली किसके होते हैं? जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं रूल्स। तो जहां जहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां वहां वो रूल्स होंगे, बाउंड्री में डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं टीसीएस की। लेट्स से टीसीएस है, तो टीसीएस की सब्सिडरी, टीसीएस की ब्रांचेस आपको इंडिया के बाहर में मिल जाएंगी, यूएस में मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी रादर। ठीक है, अब्रॉड के अंदर। तो जहां जहां पे टीसीएस होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल सेट होंगे, वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वहां पे लेट्स से टाइम फिक्स है, जो भी वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर। और जब हम रेगुलेशंस की बात करते हैं, रेगुलेशंस तो फैमिली के लेवल पे भी होती हैं।
ठीक है, रेगुलेशंस और स्मॉलर लेवल पे, लाइक फैमिली के अंदर भी मिल जाएंगे आपको रेगुलेशंस कि टाइम सोने का, उठने का, बैठने का फिक्स है। तो वो जो रेगुलेशंस आपके अंदर आ गई बेसिकली, फैमिली ने सेट कर दी, वो आपकी लाइक अब बाहर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ जाती हैं वो। ठीक है, तो ये फर्क होता है बेसिकली। बट वन फॉर दिस टॉपिक, अपने एथिक्स की बात करें, अपने सिलेबस की बात करें, तो आपको वन एंड द सेम थिंग ही समझना है कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, डायरेक्टिव्स हैं बेसिकली आपके लिए। ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर व्हाट, डायरेक्टिव्स, एक्सटर्नल डायरेक्टिव्स हैं आपके लिए। यू कैन से ऑर्डर्स भी हैं एक तरीके से, यू कैन से दीज आर ऑर्डर्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कई जगह मैंडेटरी हैं, कई जगह नॉन मैंडेटरी भी होते हैं। ठीक है, कई जगह रूल्स आपके मैंडेटरी हैं, कई जगह नॉन मैंडेटरी। रेगुलेशंस की बात करें, ठीक है, कई जगह पनिशेबल होती हैं, कई जगह नहीं पेनलाइज किया जा रहा होता है इनको। ठीक है, दैट कैन वेरी, राइट, बट यू शुड अंडरस्टैंड द इंटेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव here is these are directive in nature, these are basically comes under the category of orders. Clear? Yes, so I think this much is clear. So now let's us see the next aspect. Let us see the next aspect, which is law, rather which is the qualities of law. ठीक है, see what are the qualities of law. ठीक है, there are certain qualities of law, like it should be good. ठीक है, it should be good, मतलब इसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, गुड की तरफ होनी चाहिए। देन लॉ शुड बी जस्ट, फेयर होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी जस्ट, फेयर होना चाहिए, सबको बराबर से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, देन मतलब जस्ट फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। देन इट शुड बी मॉरली पॉसिबल, इट शुड बी मॉरली पॉसिबल, हमारे मॉरल्स के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट। देन इट शुड बी व्हाट, इट शुड कंफर्म टू ह्यूमन बिहेवियर, इट शुड कंफर्म टू ह्यूमन बिहेवियर, right, this is one category. Then it should be promulgated sufficiently, it should be promulgated sufficiently. Then it should be promulgated by the right authority, it should be promulgated by the right authority, right. Okay, so देख लेते हैं एक बार, ये सारी की सारी बेसिकली बच्चे क्या है, these are the qualities of law, कि ये गुड इन नेचर, इसका जो एम होना चाहिए वो गुड की तरफ होना चाहिए, बैड की तरफ नहीं होना चाहिए, राइट, राइट, यस। देन इट शुड बी जस्ट, इट शुड बी फेयर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं, सारे के सारे बराबर होने चाहिए। एक्सेप्शंस अलग बात है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, फेयर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी इसके बेसिस पे, राइट। देन मॉरली पॉसिबल, हमारे जो मॉरल्स हैं उसके साथ ये अलाइंड होना चाहिए, इट शुड बी अलाइंड टू ह्यूमन मॉरल्स, इट शुड बी अलाइंड टू आवर मॉरल्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे मॉरल के साथ अलाइन ही नहीं कर रहा बिल्कुल ही। ठीक है, कि यहाँ पर आपके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि लेट से कोई ऐसा लॉ है जो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी को फेवर कर रहा है। ठीक है, जो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी को फेवर कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपका इमोरल हो जाएगा। यस, इट विल नॉट बी मॉरली पॉसिबल। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, देन इट शुड कंफर्म टू ह्यूमन बिहेवियर। लेट्स से फॉर एक एग्जांपल, एक लॉ ऐसा बनाया है सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, कि भैया कल से आपको जो स्कूटर है वो अपसाइड डाउन में होकर चलाना है, उल्टे होकर चलाना है, ऐसे हाथ नीचे पैर ऊपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, इट शुड कंफर्म टू ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना। देन इट शुड बी प्रमलगेटेड सफिशिएंटली। नाउ अब एक वर्ड यहाँ पर आया है क्या, प्रमलगेटेड, प्रमलगेटेड। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, ठीक है, इफ यू आस्क मी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देयर इज अ सिंगल प्लेस, सिंगल आर्टिकल जहां पर ये वर्ड यूज किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, देयर द वर्ड रिटन इज प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, राइट। सो व्हाई द वर्ड प्रोमलगेशन इज यूज्ड ओवर देयर, कितनी इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोमलगेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोमलगेशन इज दैट पीपल शुड नो अबाउट इट। आपने सफिशिएंट तरीके से इस चीज को फॉलो, मतलब पॉपुलर किया होना चाहिए कि दैट इट, एडवर्टीजमेंट इसकी ढंग से होनी चाहिए,
जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है, दैट पीपल शुड बी प्रॉपरली बी नोन अबाउट इट, ठीक है, पीपल शुड नो व्हाट टू डू, राइट। अब ऑर्डिनेंसेस की मैं बात कर रहा था, तो लाइक नॉर्मली लेजिस्लेचर क्या होता है, वो मीडिया की कवरेज रहती है, जो सेशन में होता है तो वहां पे मीडिया के थ्रू सब पीपल को सब कुछ पता लगता रहता है, लाइव चलते हैं सेशन, सबको अवेयरनेस रहती है कौन सा लॉ आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बट ऑर्डिनेंसेस कब पास होते हैं, जब जनरल लेजिस्लेचर नहीं होता सेशन में, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब करते हैं उसको, राइट, लॉ पास करते हैं और आपका एक्ट बन जाता है। फाइनली उसको ऑब्वियसली जब सेशन में आती है अगेन लोकसभा, तब उसको अप्रूव करती है, बट इन द मीन टाइम मीडिया की कवरेज नहीं मिल रही होती है एज सच, लोगों को पता ही नहीं लगता है एज सच। सो दैट इज द रीजन स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइंड है कि भैया अगर प्रेसिडेंट साहब कोई ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, देन इट शुड बी प्रोमलगेटेड इनफ, लोगों तक पहुंचानी है वो खबरें, आपने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है इसकी कि भैया ऐसा कोई लॉ पास हुआ है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन इट शुड प्रोमलगेटेड बाय द राइट अथॉरिटी, राइट, प्रोमलगेशन भी सही मीन्स के थ्रू और सही बंदे के थ्रू, सही अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलराइट, नाउ अगर कोई भी लॉ जब पास करते हैं तो ये सारी की सारी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से अगर कोई भी एक क्वालिटी अगर नहीं फॉलो हो रही, नॉट इवन अ सिंगल वन, अगर कोई सिंगल वन क्वालिटी भी नहीं है उस लॉ के अंदर, तो दैट विल लीड टू व्हाट, that amounts to civil disobedience, that amount to civil disobedience, उस केस में तभी उस लॉ के ऊपर बवाल मचता है, क्योंकि वो लॉ सही नहीं होता, दैट लॉ इज नॉट फेयर, नॉट करेक्ट, नॉट हैज द राइट इंटेंशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इंटेंशंस हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं, उसके साथ उसको कंफर्मेशन होनी चाहिए, उसी के साथ अलाइंड होना चाहिए, यस और नो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ऑल राइट, so this was when we talk about the qualities of law. All right, now next aspect is, can law be a source of, can law be a source of unlimited, can law be a source of unlimited ethical guidance, ठीक है। now the question here is of unlimitedness, ठीक है। क्या आपका जो लॉ है वो एथिकल गाइडेंस का सोर्स तो है, हमने देख लिया, बट क्या ये अनलिमिटेड एथिकल गाइडेंस का भी सोर्स है कि नहीं है, कि आपके पास हर जगह पर, हर सिचुएशन में, एवरीवेयर, क्या लॉ प्रेजेंट है कि नहीं है, जो आपको गाइड करता रहे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी आप डिलेमा में फंस जाए। सी एथिकल गाइडेंस बेसिकली कब चाहिए होगी आपको, सबसे ज्यादा एथिकल गाइडेंस ये होती है जब भी आप एथिकल डिलेमा में फंसे हो, बेसिकली जनरली, ठीक है। बट अभी हम उस पर नहीं जाते, इन हम उस एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, बट सिंपली ये समझ लिए कि एथिकल गाइडेंस जो है वो इस सिचुएशन में चाहिए होती है। बट हमारा जो टॉपिक है कि क्या लॉ जो है वो एक अनलिमिटेड एथिकल गाइडेंस का सोर्स है, हर जगह पर, हर सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कभी भी आ गई, हर जगह प्रेजेंट है, राइट। तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ यहीं से, ठीक है, कि क्या फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, बाद में क्या हुआ, आपका कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, और जैसे कंप्यूटर आए इंटरनेट आया, ठीक है। इंटरनेट के साथ आपके क्या आए, बेसिकली साइबर लॉज आए, राइट। बट इनिशियली देयर वर नो नथिंग लाइक साइबर लॉज, और हमें फ्यूचर का भी नहीं पता, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि दैट लॉज आर नॉट परमानेंट, लॉज आर नॉट परमानेंट इन नेचर, ठीक है, परमानेंट तो नहीं है, रादर दे कैन बी व्हाट, they can be modified, they can be modified, repealed, added as well, ठीक है, नए लॉ भी बन जाते हैं, हटाया दिया जाता है, खत्म हो सकते हैं, राइट। तो लॉ परमानेंट नहीं है, जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में आपको लॉ मिले, बिकॉज लॉ के साथ साथ आपकी एक्सेप्शंस भी आती हैं, देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शन तो वही है जहां पर लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है वो अपने आप में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाए तो वहां पे एथिकल गाइडेंस, एथिक आपका जो लॉ है वो एथिकल गाइडेंस क्या दे पा रहा होगा, नहीं दे पा रहा होगा ना, जब लॉ ही नहीं है तो गाइड कैसे करेगा आपको सिचुएशन में, यस। तो द आंसर, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि यस, लॉ इज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, बट इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ, law is not a source of unlimited ethical guidance, it is not a source of unlimited ethical guidance, yes or no, ठीक है। it is a source of what, limited ethical guidance, limited ethical
गाइडेंस, बिकॉज ये चेंज भी होता है टाइम के साथ साथ, इसके अंदर चेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इंडियन केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, वेट, लेट अस टेक अ केस ऑफ इंडियन केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। चलो इसके एग्जांपल से समझते हैं और भी ज्यादा अच्छे से। क्या है ये? अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी क्या बोलता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अननेचुरल, होमोसेक्सुअलिटी इज अननेचुरल, ये सेक्शन 377 बोलता है। ठीक है, बट हमें पता है कि जो लॉ है इंडिया के अंदर, जो भी लॉ बनता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी दैट वी प्रोपाउंड, दैट वी यूज, लॉ का जो बेसिस है इंडिया की जब बात करें तो वो क्या है? नेचुरल लॉ। वो क्या है? नेचुरल लॉ। दैट मीन्स the law has been provided to us, that there are some rights that have been provided to us by nature, ठीक है, by nature, उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता, उनको फॉलो करना होता है। मतलब कोई भी लॉ अगर आप बनाओगे, कोई भी लॉ बनाओगे तो वो नेचुरल लॉ के साथ कंफर्म करना चाहिए। yes, any law that you form has to conform to natural law, right? That is the thing here। ठीक है, सो अब यहाँ पर सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग आपका जो होमोसेक्सुअलिटी है वो तो हो गया क्या? अननेचुरल, राइट? वो हो गया अननेचुरल, तो इसका मतलब वो नेचुरल लॉ के साथ कंफर्म नहीं कर रहा, तो वो क्रिमिनलाइज है। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दैट विल बी क्रिमिनल, इलीगल बेसिकली। यस और नो? तो इसी की जजमेंट 2018 के अंदर, दैट इज द रीजन 2018 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी थी, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था? दे डीक्रिमिनलाइज्ड homosexuality, saying that it is natural। उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि ये नेचुरल बिहेवियर है, तो इसको ऑल्टर करना है। सेक्शन 377 को ऑल्टर करके उन्होंने क्या बोला कि होमोसेक्सुअलिटी हैज टू बी ट्रीटेड एज नेचुरल। तो मैं आपको बताना ये कह रहा हूँ कि लॉ कैन बी अमेंडेड, कैन बी मॉडिफाइड, टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, तो ये अनलिमिटेड सोर्स तो नहीं है। प्रॉब्लम आती रहती है तभी तो जाता है लॉ, एरर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं लॉ के अंदर। ठीक है, लूपहोल्स निकलते टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती चली जाती हैं। यस और नो? ठीक है, सो दैट इज द थिंग। ओके, बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो आपके जो है नेचुरल लॉ के बेस पे बनाई गई है। यस और नो? वो कंफर्म करती है किसको? नेचुरल लॉ की थ्योरी को। और जो सारे के सारे लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कंफर्म करते हैं। यस, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन जनरल हम फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम फॉलो करते हैं, दैट शुड कंफर्म टू द लॉज। लॉज के बाहर तो वो भी नहीं जा सकते ना, जो लॉ है उसके अगेंस्ट हम भी नहीं जाते। तो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ क्या है आपका? नेचुरल लॉ से कंफर्म करता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है इन जनरल वो नेचुरल लॉ के साथ कंफर्म करने चाहिए। ठीक है, वो कंफर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज डन। ठीक है, जब लॉ की बात करें तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। यस, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्शियस की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? सो इफ आई आस्क यू, अगर मैं अभी आपसे कोई आपका ऐसा कोई डार्क सीक्रेट पूछ लूं, ठीक है, आपसे कोई ऐसी बात पूछ लूं जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करी, कोई ऐसा डार्क सीक्रेट, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बात भी करूँ, बोलो भी सही ना अभी सोचने के लिए, तो आपको सोचते सोचते भी अभी इसके से क्या फील होगा? यू विल बी स्टार्टिंग फीलिंग डिस्कम्फर्ट सा फील होना आपको एक शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको अंदर एक डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है? वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर क्या है? कॉन्शियस है। यू हैव कॉन्शियस इनर वॉइस। कॉन्शियस इज बेसिकली व्हाट? इट इज योर इनर वॉइस, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, वो इनर वॉइस वो क्या करती है? बेसिकली वो इंटेलेक्ट है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, नॉट इमोशंस। बाय द वे, कॉन्शियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ड साइंस ऐसे ही नहीं डाला हुआ, ये इंटेलेक्ट को दिखाता है, इमोशनल चीजें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बेसिकली ये जजमेंट पास करेगा, इट विल स्टार्ट पासिंग जजमेंट्स। ठीक है, इट विल टेल यू कि अगर आपने कोई काम सही नहीं किया होगा तो वो जजमेंट पास करके इट विल टेल यू इट इज अ बैड थिंग। ठीक है, इट विल टेल यू अ बैड थिंग। और अगर आपने कोई चीज सही करी होगी तो वो क्या होगा? गुड। जब बैड थिंग, तो आपको क्या फील होगा उसके बदले में? जब बैड थिंग है, इट विल स्टार्ट फीलिंग गिल्ट।
आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है, वहीं बेसिकली आपका क्या है, डिस्कम्फर्ट है कहीं ना कहीं, दैट विल लीड टू व्हाट, डिस्कम्फर्ट, राइट। तो और तो ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आपका कोई भी एक्शन, एनीथिंग, एनीवेयर, हमेशा आपके जो इनर वॉइस है, ठीक है, आपका जो कॉन्शियस है, ये प्रेजेंट है ऑल द टाइम, इट इज प्रेजेंट ऑल द टाइम। ये हमेशा जजमेंट पास करता रहेगा कोई भी आप हर एक एक्शन के ऊपर। इट विल टेल यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट विल टेल यू, इट विल गिव यू एथिकल गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, इट इज देन अनलिमिटेड सोर्स, यस और नो, it is an unlimited source of ethical guidance which will keep on telling you what is right and what is wrong, which path you should follow, which action you should take, which you should not take, yes or no, right? So conscious is an unlimited source of ethical guidance, right? All right, so now this is done. Let us move to the next aspect, which is कि जो कॉन्शियस है आपकी, ठीक है, कॉन्शियस जो है आपकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे थे कॉन्शियस सिविल सर्वेंट्स की, पब्लिक सर्वेंट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए कि उनके लिए अंदर भी कॉन्शियस है, यस। तो कॉन्शियस जो है सिविल सर्वेंट्स की, दैट इज द सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, इनफैक्ट सबसे बड़ा सोर्स ही वही है। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनके लिए भी हैं, बट जो कॉन्शियस है वो ज्यादा बड़ा सोर्स है, वो हर जगह प्रेजेंट है, बहुत सारी सिचुएशन में उनको कॉन्शियस ही लगानी पड़ती है, अपने अंदर की आवाज ही सुननी पड़ती है, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो जाती है, सब्जेक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा, इट इज बेसिकली सब्जेक्टिव। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, यस, दैट कॉन्शियस नीड टू बी ट्रेन्ड। सिविल सर्वेंट्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल सर्वेंट्स, द कॉन्शियस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स नीड टू बी ट्रेन्ड, ट्रेन द कॉन्शियस, ठीक है, इसको ट्रेन करना है, इसको शार्पन करने की नीड होती है, बिकॉज ये बहुत बड़ा सोर्स है, यस, ये तो बहुत सबसे बड़ा सोर्स है किसका, एथिकल गाइडेंस का, अनलिमिटेड सोर्स है, तो इसको शार्पन करने की नीड है। देयर अप्रोच शुड नेवर बी, देयर कॉन्शियस शुड नेवर बी सब्जेक्टिव, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उसको ट्रेन करना जरूरी होगा, यस और नो, राइट, बिकॉज बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, हेंस ओनली ट्रू कॉन्शियस, ठीक है, ओनली ट्रू कॉन्शियस, ठीक है, ओनली ट्रू कॉन्शियस कैन बी अ सोर्स ऑफ, कैन बी अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड, राइट, कैन बी अ सोर्स ऑफ, रादर अनलिमिटेड की जगह कैन बी सोर्स ऑफ ट्रू एथिकल guidance, true ethical guidance, especially when we talk about civil servants, especially when we talk about civil servants, right? And what is true conscious here? When I talk about true conscience, I told about true conscious, मैं जब ट्रेन की बात कर रहा हूँ कि that they need to be trained, ट्रेन करने का मतलब है, शार्पन करने का मतलब है कि उनकी कॉन्शियस को, जो सिविल सर्वेंट्स की कॉन्शियस है, वो ट्रू कॉन्शियस के साथ अलाइन करनी चाहिए, यू शुड कम इन अलाइन विद ट्रू कॉन्शियस। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ट्रू कॉन्शियस की बात करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स ओनली, एंड नॉट evidences, and not based on evidences, yes, it should be based on facts rather than evidences. Now what does it mean? See, facts are always true, ठीक है, फैक्ट्स तो ट्रू रहते हैं कि भैया किसी का अगर लेट से अगर मर्डर हुआ है तो हुआ है, वो तो फैक्ट है ना, ठीक है, किसने किया कैसे किया वो अलग बात है, लेकिन वो जो सच्चाई है आपके सामने उसको बदल नहीं सकते, फैक्ट्स आर ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एविडेंसेस, सी एविडेंसेस कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, एलिमिनेटेड, एडेड, नए नए एविडेंस आते हैं, चेंज होते रहते हैं, ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, कोई एविडेंस सही है, कोई एविडेंस गलत है, राइट। तो हेंस आपका जो कॉन्शियस है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लाइक यहाँ पर आपके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको फैक्ट्स के साथ ही डील करना है, उनके लिए किसी को अलग से किसी को कोई एविडेंसेस लोगों की कुछ भी मतलब उनका नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ट्रूली, नो पॉलिटिकल एफिलिएशंस एज सच, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना, बेसिकली फैक्ट्स के पेपर बेचने का मतलब है ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखना, इस हिसाब से ट्रेन करना कॉन्शियस को, यस, दैट इज द रीजन ये टॉपिक आपके लेक्चर में है, आपके सिलेबस में, सॉरी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। सो
ठीक है, इफ आई टेल यू, ठीक है, इफ आई सम कंक्लूड दिस टॉपिक, अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो यू कैन, ठीक है, यू कैन कंक्लूड इन दिस मैनर, इट इज अ थिंग कॉल्ड एज, ठीक है, थिंक, राइट एंड राइट थिंग। ठीक, तो जब हम थिंक राइट की बात करते हैं, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर्स, कि दैट द थिंग दैट यू डू, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो एक्शंस हैं, बेसिकली आपके जो एक्शंस हैं वो सही होने चाहिए, वो उनको करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, द वे ऑफ परफॉर्मिंग इट, वे जो है बिल्कुल सही होना चाहिए आपके एक्शंस प्रोसीजरल। यहाँ पर बेसिकली हम किन की बात कर रहे हैं कि आपको जो है एक्शंस जो हैं वो सही कैसे होंगे, अगर आप लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, अगर आप लॉज रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, ठीक है, देन यू विल डू द राइट थिंग, राइट, यू विल डू द थिंग इन द राइट मैनर, ठीक है, थिंग राइट मतलब यू डूइंग द थिंग इन द राइट मैनर। व्हेन वी से राइट थिंग, ठीक है, राइट थिंग मतलब जो इंटेंट, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड आल्सो बी राइट, दैट एडमिनिस्ट्रेटर, एन एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू द राइट थिंग। आपका जो एक्शन भी है वो भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, एक्शन को करने का तरीका भी सही होना चाहिए, और एक्शन को जो आपका जो अल्टीमेट एक्शन है वो भी सही होना चाहिए। जो तरीका है वो सही कैसे होगा, अगर आप, वो कैसे होगा आपका लॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके, और एक्शन सही कैसे होगा आपका अगर आप कॉन्शियस को फॉलो करते हैं अपनी। यहाँ पर बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, कि अगर आपकी कॉन्शियस ट्रेन्ड होएगी, प्रॉपर होएगी, शार्पन्ड होगी, ठीक है, देन यू विल डू द राइट थिंग। अगर आप लॉज रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे देन यू विल ऑलवेज डू द थिंग इन द राइट मैनर, राइट। सो दिस इज द वे दैट यू शुड एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पर क्या होता है, ओवर। एंड आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। If yes, then please do give us a thumbs up. It really motivates us to bring us these kind of initiative for you again and again. Right? So now with this, I wish you good luck for your future endeavors. And until our next lecture, take care and bye-bye. Thank you.